In this class, I will discuss with you biography of Sarojni Naidu, a well-known poetess of India and also Nightingale of India. तो उनका क्या वर्क है, उनका जन्म कब हुआ, उनका डेथ क्या है, उसको लेके हम बात करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोयम composed by Sarojni Naidu, which was prescribed in UPSC syllabus, I have covered. I have gone in a very detailed way, explanations, critical analysis, all these things I have done. So sharing with you PDF file. I hope it's visible. Yes, sir. Okay, okay. So we are going to cover what we are going to cover. This means a well-known poetess of India, about her life, about her work, and also what the role she played as an administrator. So you find कि सरोजनी नायडू, इनका पूरा नाम सरोजनी नायडू चट्टोपाध्याय. She was born on 13th February 1879. That was the means colonial India. So here you see कि we are talking about Sarojini Naidu Chattopadhyay. Sarojini Naidu Chattopadhyay was born on 13th February 1879, died 2nd March 1949. After the independence of India, India got its freedom in 1947. After 2 years of independence, she died. So these are the two significant points which you have to keep in your mind. Is Sarojini Naidu Chattopadhyay. She was born on 13th February 1879, died on 2nd March 1949, was an Indian political activist and poet, a, pro- a proponent of civil rights, women's emancipation, and anti-imperialistic ideas. शी हैज सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सिविल राइट्स की सपोर्टर थी, औरतों के अधिकारों के लेकर के उन्होंने बात किया, और एंटी इंपीरियलिज्म जो एक आप कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी सोच थी ब्रिटिशर की, उसके खिलाफ थी कि हाउ ब्रिटिशर मेड इंडिया इट्स कॉलोनी. तो वो जो कॉलोनियलिज्म था, जो इंपीरियलिज्म था, या जो एंटी इंपीरियलिस्टिक आइडियाज था, she stood against it, and she supported what civil rights, women's emancipation, all these things firmly. She was an important person in India's struggle for independence from colonial rule. But in other words, you can say that she contributed what she contributed as a freedom fighter to make India free, from the rule of Britisher. She contributed. She was a contemporary of Mahatma Gandhi. Yes, she was much influenced from the ideologies of Mahatma Gandhi, Hindu Swaraj. Naidu's work as a poet earned her the sobriquet the Nightingale of India. Nightingale of India. This is another significant point. The Nightingale of India. It's the work of whom? It's the work of Night. Whom is the work of? Uh, Not the work, but she got the title. Whatever she wrote, whatever she presented, yeah, whatever, what the beautiful words came from her magical pen, in the form of the poem, in the form of the lyric, in the form of the song. So she got the title what she got the title as of the Nightingale of India, या भारत कोकिला. By whom? By Mahatma Gandhi. ये GS में भी question, so many times this question has been asked you, who is known as Bharat Kokila, yeah, who is known as the Nightingale of India, and who gave this title Mahatma Gandhi. क्यों? क्योंकि because of color, imagery, and lyrical quality of a poetry. What the poem she wrote, that's highly rich, that's highly beautiful from the perspective of color and imagery. So color and imagery which you see in lyrical quality of a and lyrical quality of a poetry, she influenced so many people. Mahatma Gandhi was also influenced by her writing, and Gandhi called her Bharat Kokila. Yeah, Gandhi addressed her the Nightingale of India.
एंड यू फाइंड कि दिस इज अ पिक्चर नायडू ऑन 1964 स्टैम्प ऑफ इंडिया पे, जो भारत सरकार का जो स्टैम्प ऑफ इंडिया है उसका, उस पर इनका एक चित्र बना हुआ है, यू फाइंड। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पहली गवर्नर बनी थी कहाँ की, यूनाइटेड प्रोविंसेस का। व्हाट डू यू मीन बाय यूनाइटेड प्रोविंसेस? व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, देन यू फाइंड दैट कि वो जो एक यूनाइटेड प्रोविंसेस था उसका जो गवर्नर बनी थी पहली गवर्नर, शी वाज गिवन चार्ज। एंड यू फाइंड दैट कि ऑल दिस थिंग इसमें उनका रहा है प्रिसीडेड पोजीशन स्टैब्लिश सक्सीडेड बाई हरमंसजी पेरोशा मोदी, दैट इज अनदर थिंग। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उनका दखल था, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वो बनी हुई है। सो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेकेंड पॉइंट की प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड पॉइंट की शी वाज बोर्न on 13th February 1879, died on 2nd March 1949. She was a proponent of civil rights, women's emancipation, and anti-imperialistic ideas, and she also contributed to make India an independent nation. Gandhi was much influenced from her writing and addressed her as the Nightingale of India or Bharat Kokila. Especially her poetry has what her poetry is highly rich, and you find in her poetry there is color, imagery, and lyrical quality. And she talks about India's ethos, India's culture, India's sensibility. These things you see, these things you find. Now the next thing you have to remember, uh, जो उन्होंने इंडिपेंड उसका पोजीशन लिया हुआ था, किसका पोजीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके पहले जो है कौन थे, महात्मा गांधी थे उसके पहले, और सक्सीडेड बाय श्रीनिवास आयंगर, और फिर उनके बाद जो आते हैं वो श्रीनिवास आयंगर आते हैं। तो यू फाइंड दिस टू फिगर्स की उनसे पहले जो है महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के बाद सरोजनी नायडू बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद श्रीनिवास आयंगर आते हैं। अब उनके बॉर्न को लेकर के बताया जा रहा है कि सरोजिनी नायडू का पूरा नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था। 13 फरवरी 1879, हैदराबाद स्टेट, ब्रिटिश इंडिया। डाइड कब, 2 मार्च 1949, 70 साल की उम्र में। कहाँ पे, लखनऊ, यूनाइटेड प्रोविंसेस डोमिनियन ऑफ इंडिया। डेथ कहाँ पे होती उनकी, लखनऊ में होती, यूनाइटेड प्रोविंसेस डोमिनियन ऑफ इंडिया, चूंकि शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर, शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस डोमिनियन ऑफ इंडिया। नेशनलिटी इंडियन, पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनके स्पाउस कौन थे, गोविंद राजू नायडू। सो यू फाइंड की गोविंद राजूलू नायडू, जिनका जन्म 1898 में हुआ था और 1949 में उनकी भी मौत होती है। सो इन दिस वे यू सी अबाउट दिस वुमन, अबाउट दिस लेडी। चिल्ड्रन उनके कितने, 5, इंक्लूडिंग पद्मजा। रिलेटिव्स, उनके भाई का नाम वीरेंद्र नाथ, हरि हरिंद्र नाथ, सुशैनी सिस्टर। Alma mater, King's College, London. She got her education uh, from London, especially at King's College. ये चीज उस समय एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके अलावा गिरटन कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, इस इन जगहों से उनकी एजुकेशन हुई है, बड़ी बड़ी जगहों से उस समय उनकी एजुकेशन हुई है। ऑक्यूपेशन क्या था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट रही है। सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर कि सरोजिनी चट्टोपाध्याय, born on 13 February 1879, Hyderabad, and she was the president of Indian National Congress in 1925. Before him, who was the president of Indian National Congress? Mahatma Gandhi. And after him, who became? Yes, she was succeeded by Srinivas आएगा, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें आपको है उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, उनके रिलेटिव्स के बारे में। उनके हस्बैंड जो है गोविंदा राजू नायडू, उनका जो डेथ हुआ है 1949 में एट द एज ऑफ 70, लखनऊ में हुआ है। दिस थिंग, शी हेल्ड अ वेरी गुड पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। उनका जो राइटिंग करियर है यहाँ पे आप देखेंगे, नायडू बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 12। हर प्ले
माहिर मुनीर नायडू जो है एक 12 साल की उम्र में लिखना शुरू करती हैं और उनका एक प्ले था माहे मुनीर, रिटेन इन पर्सियन, एक इसमें लिखा गया था, पर्सियन में लिखा गया था, इम्प्रेस्ड द निजाम ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद, और एक प्ले पर्सियन में था। माहे मुनीर वाज हर प्ले विच शी रोट एट द एज ऑफ 12 and it was written in Persian. It impressed the Nizam of Hyderabad. इसने निजाम ऑफ हैदराबाद को काफी ज्यादा प्रभावित किया। Naidu's poetry is written in English and usually took the form of lyric poetry. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नायडू की पोइट्री किस फॉर्म में है? लिरिक पोइट्री में है। इन द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिसिज्म, और वो उस चीज को फॉलो करती है जो कि ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स ने जिस ट्रेडिशन में लिखा हुआ है उस ट्रेडिशन को फॉलो करती है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि नायडू ने अपना कार्य एज अ ड्रामेटिस्ट शुरू किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम क्या है? माहिर मुनीर इन पर्सियन, और निजाम किंगडम ऑफ हैदराबाद वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड या इम्प्रेस्ड। उनकी जो पोइट्री है लिरिक पोइट्री है और उस पैटर्न को फॉलो करती है, ट्रेडिशन को, जो कि रोमांटिसिज्म पर होता है। which she was sometimes challenged to reconcile with her Indian nationalist politics. She was known for her vivid use of rich sensory image in her writing. उनके अपने उसमें पोइट्री में रिच सेंसरी इमेजेस पाया जाता है, सेंसेस का अच्छा यूज है। एंड फॉर हर लश डिपिक्शंस ऑफ इंडिया, और इंडिया को उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, वेदर यू हैव गॉन विद इंडियन वीवर्स, यू हैव रेड एक और पोयम था अगर आपको याद होगा अभी, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, यस्टरडे आई हैड कवर्ड, सब में इंडिया का, द बेंगल सेलर, दिस पोएम्स में आप देखते हैं। शी वॉज वेल रिगार्डेड एज पोएट कंसिडर्ड द इंडियन येट्स। ये एक नया क्वेश्चन बनेगा, इसे भारत की W.B. येट्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। So she was well regarded as a poet, considered the Indian years. Her first book of poems was published in London. उनका पहला जो कलेक्शन आया पोएम का वो लंदन में आया 1905 में, जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से। द पब्लिकेशन वाज सजेस्टेड बाय एडमंड बोज, जो पब्लिकेशन था यह एडमंड बोज ने सजेस्ट किया, एंड बोर एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर साइमंस। आर्थर साइमंस ने इस पे एक इंट्रोडक्शन लिखा। ये भी क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। उनका पहला पोइट्री कलेक्शन 1905 में आया जिसका क्या नाम था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द पब्लिकेशन वाज सजेस्टेड बाय एडमंड गॉस, और जो पब्लिकेशन था किसने सजेस्ट किया? एडमंड गॉस ने सजेस्ट किया। इंट्रोडक्शन किसने लिखा? आर्थर सीमेंस ने लिखा। It also included a sketch of Naidu as a teenager in a ruffled white dress drawn by जॉन बटलर येट्स। और इसमें जो है क्या किया गया, एक स्केच नायडू का टीन एजर के समय का एक उनका स्केच तैयार किया गया, और यह स्केच किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन बटलर येट्स के द्वारा। हर सेकेंड एंड मोस्ट स्ट्रांगली नेशनलिस्ट बुक ऑफ पोएम द बर्ड ऑफ टाइम, जो उनका सेकेंड जो था द बर्ड ऑफ टाइम, वो 1912 में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बर्ड ऑफ टाइम came in 1912. It was published in both London and New York. ये दोनों जगह पब्लिश होता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क में, एंड इंक्लूडेड इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। और इसमें एक पोयम को शामिल किया गया था जिसका नाम था इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो सेकेंड आपका क्या था? इनका कलेक्शन जो है द बर्ड ऑफ टाइम रहा है, और एक का पब्लिश होता है 1912 ईस्वी में, और साथ ही साथ आप ये देखते हैं लंदन और न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ था, जिसमें इन द बाजार ऑफ हैदराबाद था। द लास्ट बुक ऑफ न्यू पोएम्स, जो लास्ट बुक था न्यू पोएम्स का पब्लिश इन हर लाइफ टाइम, उनके लाइफ टाइम में, वो क्या था? द ब्रोकन विंग, जो 1917 में आया, वाज डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना को डेडिकेटेड था। इट इंक्लूड्स द पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इसमें एक पोएम को जो शामिल किया गया जो द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ इंडिया किसका हिस्सा है? द ब्रोकन विंग का। और द ब्रोकन विंग किसको डेडिकेट किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। और एक कब आया है? 1917 में आया हुआ है। in yeah, critiquing the British Empire's exploitation of Indian mothers, which she had previously recited to the Hyderabad ladies.
वार रिलीफ एसोसिएशन 1915। इसमें उन्होंने जो इंडिया का जो एक एक्सप्लॉइटेशन था किसके द्वारा, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर के द्वारा, और जिसको उन्होंने एक पोयम की शक्ल दी थी, हैदराबाद लेडीज वार वॉर रिलीफ एसोसिएशन जो बना हुआ था, उस पोयम को उन्होंने वहां पे पढ़ा भी था एक बार। तो द गिफ्ट ऑफ इंडिया पोयम इसमें शामिल किया गया है। और इसके पहले जो उनका कलेक्शन था द बर्ड ऑफ टाइम, उसमें इन द बाजार ऑफ हैदराबाद पोयम शामिल किया गया है। लेडीज वार रिलीफ एसोसिएशन इट आल्सो इंक्लूडेड अवेक। अवेक इसमें एक और पोयम को शामिल किया गया था, अवेक, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच वी शी कंक्लूडेड एट 1950 स्पीच टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू अर्ज यूनिफाइड इंडियन एक्शन। और इसी अवेक पोयम के साथ ही उन्होंने 1915 ईस्वी में अपनी स्पीच को खत्म किया था, जो जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी। अ कलेक्शन ऑफ ऑल हर पब्लिश्ड पोयम, कह रहे उनका जो कलेक्शन था, जितना भी कलेक्शन था पब्लिश पोयम का, वाज प्रिंटेड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में प्रिंट हुआ था कब, 1928 में। आफ्टर हर डेथ नायडूज कंप्लीट पोयम्स इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड वर्क्स, करें कि नायडूज का जो कंप्लीट पोयम है और उनका जो अनपब्लिश्ड वर्क था, वो कलेक्ट किसमें हुआ, द फीदर ऑफ डान में 1961। एक और इम्पोर्टेंट, सबका कलेक्शन किसमें आता है, द फीदर ऑफ द डान में, एडिटेड बाई हर डाटर, जो उनकी बेटी ने एडिट किया था, पद्मजा नायडू ने। किसने, पद्मजा नायडू ने। एडिटेड बाई हर डाटर पद्मजा नायडू। इट वाज एडिटेड बाय हु, इट वाज एडिटेड बाय हर डाटर पद्मजा नायडू। आई थिंक यू आर गेटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है, यू कैन रिस्पॉन्ड। It's okay, sir. या ओके। सो यू फाइंड कि बाद में जो है उनका जो कलेक्शन आया द फीदर ऑफ द डॉन के नाम से आता है, 1961 में आता है। और ये एडिट किया गया था किसके द्वारा, उनकी बेटी पद्मजा नायडू के द्वारा। नायडूज स्पीच वर फर्स्ट कलेक्टेड एंड पब्लिश इन जनवरी 1918। नायडू की जो स्पीच थी उसको कलेक्ट किया गया कब, 1918 में कलेक्ट किया गया था, द स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू। और उसको क्या नाम दिया गया था, द स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू। अ पॉपुलर पब्लिकेशन विच लेड टू एन एक्सपेंडेड रीप्रिंट, जो बाद में रीप्रिंट हुआ 1919 में और 1925 में। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर कि इस तरह से अगर आप देखेंगे उनके वर्क को लेकर के पूरा बात की गई है। और अगर आप ये वाला पोर्शन और इसके बाद वाला पेज जो है वो कवर कर लेंगे तो सब एक जगह आ जाएगा। इनके वर्क्स, पहला 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, लंदन, विलियम हेनमैन जो पब्लिशिंग हाउस है वहां से पब्लिश हुआ, 1905 ईस्वी में आता है। और पोइटिक कलेक्शन का क्या नाम है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड आता है। ये यहाँ पे उनकी जो पोयम है कैसी है, सोनेट है, लिरिक है या एलिजी है, लिरिक है सर। लिरिक है। दूसरा चीज की उनकी जो पोयम है उसमें ब्रिटिश कल्चर है या इंडियन कल्चर है, मोस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर। उसके बाद 1912 में उनका आता है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ द स्प्रिंग। ये भी लंदन में पब्लिश होता है, विलियम हेनमैन, और न्यूयॉर्क में, दो जगह पब्लिश होता है, लंदन और न्यूयॉर्क में। लंदन में तो विलियम हेनमैन पब्लिशर थे, और न्यूयॉर्क में जो है कौन पब्लिशर था, जॉन लेन कंपनी। 1917 में द ब्रोकन विंग आता है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग आता है। 1917 में द ब्रोकन विंग आता है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग। 1917 में द सॉन्ग ऑफ द पायलंकिन बियरस आता है, जो उनका लिरिक रहा बाई सरोजनी नायडू, द सॉन्ग ऑफ द पायलंकिन बियरस बाई सरोजनी नायडू, एंड म्यूजिक बाई मार्टिन शाह। 1918 में द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू, मद्रास में। ये उनका जो स्पीच था जिसको 1919 में रीप्रिंट किया गया, 1925 में भी रीप्रिंट किया गया था। फिर उसके बाद जो है 1919 में एडिटर मोहम्मद अली जिन्ना एंड अम्बेसडर, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लिखा था, जो 1919 में आता है। फिर 1919 में एडिटर मोहम्मद अली जिन्ना एंड अम्बेसडर ऑफ यूनिटी, हर स्पीच एंड राइटिंग्स 1912 by 1917 with a biographical pen portrait of जिन्ना बाई नायडू, मद्रास। उस समय हो सकता है कि जिन्ना की आइडियोलॉजी क्या रही क्या नहीं, लेकिन उन्होंने जिन्ना को लेकर के लिखा। और जिन्ना को उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो क्या वर्ड यूज किया हुआ है कि जो जिन्ना है वो जो है
एंड अम्बेसडर ऑफ यूनिटी, वो एकता के जो है राजदूत है जो है। उस समय का सिचुएशन रहा होगा, बाद में आइडियोलॉजी को लेकर क्लैश हुआ होगा, फिर उस तरह की चीजें। हिज स्पीचेस एंड राइटिंग ऑल दिस थिंग। 1928 में द सेप्टर्ड फ्लूट, उनका 1928 में द सेप्टर्ड फ्लूट आता है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क में डॉड और मियार्ड कंपनी पब्लिश करती है। 1961 में द फीदर ऑफ द डॉन आता है, एडिटेड बाय पद्मजा नायडू के द्वारा। These things you find. Legacy में ये चीज है कि नायडू इज नोन एज वन ऑफ इंडिया फेमिनिस्ट लिमिडीज, और जो नायडू का बर्थडे है 13 फरवरी को, वो वुमेन्स डे के रूप में जो एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, एज वुमेन्स डे टू रिकॉग्नाइज पावरफुल वॉइसेस ऑफ वुमेन इन इंडियाज हिस्ट्री। As a poet, Naidu was known as the Nightingale of India. Edmund Ghosh called her the most accomplished living poet in India in 1990. Edmund Ghosh. So you find कि ये चीजें रही. Naidu is memorialized in the Golden Threshold. So nothing you find here कि उनका वर्क, उनकी चीजें, नाइटिंगल ऑफ इंडिया, एडमंड गॉस का कमेंट, अगर आप ये करेंगे तो ये पूरा बायोग्राफिकल स्टडी उनका कवर हो जाएगा। कोशिश मैं करूंगा कि अगर थोड़ा सा हो सकेगा तो कल मैं इनके बायोग्राफिकल स्टडी और सारी चीजों को लेकर के आपको मैं एक टेस्ट करा दूंगा, तो उसमें चीजें हो जाएगी। बट ये तभी होगा जब थोड़ा सा रिलीफ होगा मेरे हाथ पे, क्योंकि मैंने अभी इसीलिए आज ही मैं टेस्ट कराने वाला था, बट